you have cleared the exam and now you're worried about your PhD interview. You don't know from where to start, how to start, what should I start, and all of those. Like, and what if I don't know the answer? If all these questions are going in your mind, don't worry. In today's video, I'll tell you exactly how to prepare for your PhD interview and what all do the interviewers expect and all of those. So let's just get started. हेलो एवरीवन, माय नेम इज आकृति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड शुरू करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, प्लीज गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, प्लीज सपोर्ट कर दिया करो। ये कोई छपरी वीडियो बना रहा होता है, छपरी चैनल होता है तो सब सपोर्ट करने आ जाते हैं, सब लाइक शेयर करते हैं, बट आई डोंट नो एजुकेशन को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी जाती हमारी कंट्री में। और जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है वो भी देख के समझ में आ रहा है कि वैसे भी पहले भी पता ही है हमें, हमारे देश में एजुकेशन को वो इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती। और आज जो हुआ वो तो चलो उस बारे में बात नहीं करते। एनीवेज, हम अपने मुद्दे से नहीं भटकते, वरना हमारे देश में लोगों को मुद्दे से भटकाना बहुत आसान है। आप समझ के होंगे मेरा इशारा किस तरफ है। एनीवेज, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। सो ओके, लेट्स जस्ट बिगिन। So one of my subscribers recently asked me to make a video on how to prepare for PhD interview. So this video is for all those students who are struggling with their PhD interview preparation. So this video is for you people. Okay, so now PhD interview isn't about checking whether you know everything or not. PhD interview, whereas PhD interview is about checking whether how much potential and interest you have for your research. Okay, so let me begin with a story. Okay, there are two students. Okay, student A and student B. Now student A has secured very good marks, okay, very good percentage, and he has memorized every possible answer before the interview. Whereas student B has secured some average marks, but he clearly knows why he wants to do a PhD. And he explained it in a very good way, in a very crystal and clear manner to the panel that why he wants to pursue a PhD. He was very clear with his thoughts, okay, and he explained it in a very clear way and in a very short, okay, way also. So now just think, okay, just take a pause and think कि किसका सिलेक्शन हुआ होगा, स्टूडेंट ए का या स्टूडेंट बी का? Okay, now let me tell you, of course student B ka. Why? Because panels, they don't expect perfection. Okay, they don't want perfection. They just want to know that whether you are interested and willing to learn or not, whether you have that potential for your research interest, and are you like that much willing to learn or not. Okay, so that is the thing panels they look for. Okay, now first things, नो योर रिसर्च इंटरेस्ट। ठीक है, पहली चीज अपनी रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में पता करो, क्या है नहीं है, डिस्कवर योर सेल्फ, ट्राई टू रीड सम पेपर्स एंड ऑल ऑफ दोस, एंड डू नॉट से कि डू नॉट टेक सब्जेक्ट्स नेम लाइक मे बी कॉमर्स और मैनेजमेंट और कोई भी जो भी सब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट नेम नहीं लेना है। डोंट बी ब्रॉड, बी स्पेसिफिक, रादर टेल द टॉपिक। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ले लो, AI रिलेटेड टॉपिक है तो उससे रिलेटेड कुछ बताओ, या फिर कंज्यूमर बिहेवियर, जो भी ये टॉपिक से कुछ नाम बता रही हूँ मैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, यू हैव टू बी स्पेसिफिक, यू हैव टू बी क्लियर विथ योर आइडिया, दैट इज द फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकेंड, दूसरी बात क्या है कि रीड पेपर्स रिलेटेड टू योर एरिया ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, what is the topic about, what are the gaps still need to get be identified, and what is it all talking about. ठीक है, कितना कितना रिसर्च हुआ है, कितना नहीं हुआ। ओके, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जानी है आपको उस चीज में, बट एटलीस्ट लाइक 70%, 60 to 70% उस चीज की नॉलेज रखो। ठीक है, अब ये सब कर लिया आपने, पेपर्स वगैरह पढ़ लिया, अपने एरिया से रिलेटेड अपना रिसर्च इंटरेस्ट वो सब हो गया। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है, the questions, the most common questions that you can expect in your interview. एक्सपेक्ट भी नहीं, मैं कहूंगी कि यही क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये प्रिपेयर रहना। सबसे पहली चीज, टेल अस अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, नाउ अब पूरी अपनी कहानी और
कथा मत बताने लगना वहां पे, ठीक है। उतना टाइम उनके पास ना सुनने के लिए नहीं होता है, और ना ही आपके पास बताने के लिए उतना पेशेंस होगा। उस वक्त आप काफी नर्वस रहते हो। तो अगर आप बहुत एक पेज का या आधा पैराग्राफ, हाफ पेज का पैराग्राफ आप याद करके जा रहे हैं, तो वो चीजें आपके लिए माइनस में चली जाएंगी, ठीक है, नेगेटिव में काउंट हो जाएगा। तो ये चीज मत करना। बहुत शॉर्ट रखना, अपने एजुकेशन के बारे में बताना, अपने बैकग्राउंड जो भी, ठीक है, एंड अपने आप कहाँ से बिलोंग कर रहे हो उस बारे में थोड़ा सा बताना। वहाँ के कल्चर के बारे में जरूर बताना, थोड़ा सा कुछ भी, ठीक है, अपने कल्चर रिलेटेड। दैट इज वेरी लाइक इंगेजिंग फॉर इंटरव्यूअर्स। वो कॉन्वर्सेशन फिर बोरिंग नहीं होती है, ठीक है। तो ये चीज, एंड सब्जेक्ट रिलेटेड एंड एजुकेशन, बस इतना ही कहना है, ठीक है। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे, व्हाई डू यू वांट टू डू अ पीएचडी। तो ये मत कहना कि आई वांट टू डू अ पीएचडी बिकॉज आई वांट टू बिकम अ प्रोफेसर। सबको पता है पीएचडी करने के बाद आप प्रोफेसर बनेंगे और इसलिए आप पीएचडी कर रहे हैं और डॉक्टरेट की डिग्री चाहिए, ये तो बिल्कुल भी मत कहना, ठीक है। आपको ये कहना है कि आपकी इंटरेस्ट इसमें, आपको कब से इसमें इंटरेस्ट आया, या कब ये समझ में आया कि आपने कब जाना इस एग्जाम के बारे में। ये सब चीजें आपको बतानी है, ठीक है। एंड तब आपको इंटरेस्ट आया सुन के कि मुझे इस फील्ड में आना है, इस फील्ड में कुछ करना है, कुछ नया एक्सप्लोर करना है, कुछ डिस्कवर करना है, ये सब चीजें बतानी है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं जो पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है, फॉर श्योर। अब आती है बात प्रपोजल। आप जो प्रपोजल बना के लेके जा रहे हो ना, मेक श्योर कि वो बहुत सिंपल एंड इजी लैंग्वेज हो। बहुत ज्यादा टेक्निकल लैंग्वेज उसमें यूज किया हो, वो चीज ना हो। क्योंकि फिर क्या होगा ना, आपको कुछ बाहर से नहीं पूछेंगे, आपको यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि टेल अस अबाउट योर सेल्फ, आपको पीएचडी क्यों करनी है, दूसरी चीज। तीसरी चीज, आपने पेपर पब्लिश किया है या नहीं, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो अगर मान लो आपका कोई गैप ईयर रहा है 2-3 साल का, या एग्जाम निकालने में लेट हो गया, या फैमिली इमरजेंसी रही है जिस वजह से आपका करियर ब्रेक लग गया था, या कुछ भी, तो कहना कि कुछ रीजन देना। डोंट जस्ट स्टे क्वाइट, ठीक है। कुछ बोलना कि आपने पेपर क्यों नहीं पब्लिश है, क्योंकि आपने शायद बाद में सोचा इस फील्ड में आने के बारे में, आपने पहले से नहीं सोचा। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं, ठीक है, सबके अपने अपने रीजन होते हैं। तो वो रीजन बताने, ये 3 क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद चौथी चीज, ठीक है, प्रपोजल। कि अपना फिर वो प्रपोजल उनके पास पहले से होता है, पहले से वो सबमिट करवा लेते हैं ऑनलाइन एंड ऑल, फाइल्स उनके पास हाथ में होती है उस वक्त। आपके पास भी एक फाइल होती है, उनके पास भी होती है, पैनल के पास भी होती है। तो उसी वक्त वो फाइल से खोलेंगे, प्रपोजल से कोई भी आपको वर्ड उठा के पूछ देंगे कि तुमने इस पैराग्राफ में इस चीज लिखा है, इस वर्ड का मुझे मतलब बताओ। इसलिए मैं कह रही हूँ कि अपने प्रपोजल को सिंपल रखना, बहुत सिंपल एंड इजी लैंग्वेज में रखना, ताकि तुम समझ सको। क्योंकि अगर तुम नहीं समझ सकते तो तुम सामने वाले को नहीं समझा सकते हो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा टेक्निकल और ये सब यूज मत करना। और अपने रिसर्च प्रपोजल को, अगर एआई का भी हेल्प ले रहे हो, और आज के डेट में हर कोई एआई का हेल्प ले ही रहा है, ठीक है, तो एआई का हेल्प भी ले रहे हो, लो, कोई बुरी बात नहीं है, एआई का हेल्प लो। लेकिन उसे 50 बार पढ़ना और समझना, और हर एक लाइन का मतलब समझ कर जाना। वो कोई भी रैंडम लाइन या कोई भी रैंडम वर्ड उठा के पूछ सकते हो, और अगर आप उस मोमेंट पे ब्लैंक हो गए ना, तो आपके लिए वो चीज नेगेटिव में चली जाएगी, ठीक है, अपने प्रपोजल से रिलेटेड। तो ये एक व्हाई डू वांट टू डू अ पीएचडी, इसका एक स्ट्रॉन्ग आंसर होना चाहिए आपके पास। एंड प्रपोजल अच्छे से पढ़ के जाना, और बाहर से कुछ नहीं पूछेंगे। यही आप मेरे से लिख के ले लो, यही क्वेश्चंस वो पूछते हैं। इसके अलावा और कुछ देश दुनिया के बारे में कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। तो बस ये सब कर लेना, एंड यू आर सॉर्टेड एंड विल क्रैक द इंटरव्यू। सो या, that's all for this video, and please do guys like share and subscribe कर दिया करो यार, मुझे भी मोटिवेशन चाहिए होती है बनाने के लिए, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ओके, मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।